Hello guys, welcome back to my channel. My name is Urja Bhatia and thank you so much for all the love for my previous video. So today's topic is how to score exemption in paper 6D economic law and how I had scored exemption in that paper. So let's get into the video. So the first question is either to do it self-study or take any professor's lecture. Yes, this can be done through self-study. I had not taken any professor's guidance or lecture either. I had done was I read the whole Economic Law Institute module in 7 days with very minute details and prepared an index parallelly. I literally had typed the whole index and it took me around 7 to 8 days. For the index, I will create a whole another video because it covers a lot of other aspects, because I had made the whole index from the scratch and I had not taken any professor's index. Literally made an index where it covers everything, right from penalty, case laws, interreferences of the pages of the module and everything else. So that will take this video it will be very long, so I will create another video for the indexing. Once you are done reading the whole module in 7 to 8 days and parallelly typing your own index, then we will jump to the case study digest, institute case study digest. And as we have seen, economic law is literally on bull run. So next few attempts it's still going to be very easy, and we have witnessed that everything in the paper was from the case study. So this is very important for paper 60. I will just give an overview how I had solved case study digest. Rest I will create another video for that. Overview of it was I had solved one case study every day. Like I made it a point whenever there's a period, like there's literally 1 hour or 2 hours that is a slack, this is the most unproductive time of the day. So I made it a point in that time I solve case study digest, either 1 or 2, depends on the length of the case study. Either or maybe when the days were closer, I started with my day off with this solving one case study. So inculcating paper 6D in everyday routine helped me have a hang over the subject, and it was not like that just before exam I took up paper 6D and then it was all chaos in the head. It was very structured and very systematic. Truly I had made a point that I should solve at least 1 or 2 case studies every single day, and that's one of the biggest key for my exemption. The second foremost and the most neglected area I would say that is case laws. For case law, there is literally another booklet which Institute has given us for case laws, and it includes a lot of many case laws. So what I had done was, the smart technique was Sanidhya Saraf sir had uploaded a summary of important case laws. So I had taken a printout of that, and then while solving case study, I had made it a point that I give cross reference of case laws as well. Like while solving case study, if there is some case law reference to be given, so I made it a point that the booklet which I had of the case law, I give reference there that this case law is mentioned in this case study, the cross references, then section number references, the summary in my own words, what the case law is trying to say. So in case if there is a new case study and something which I can relate, so I made it a point to write summary in my own words. Please don't skip any case laws, because in my attempt there was 2-3 questions that mentioned that justify this case law. Please answer on the basis of this case law. So giving cross references of case laws and case study helped me have that 4 marks. So in that 1.5 day time, what I had done was, first I had written important case studies I have to refer before exams, because they were tricky, either MCQ or the descriptive part. So first I had referred that, and this is luck or what, I don't know. I had solved one mock case study and had taken printout of that, like very urgent basis, and it just came up in the paper next day. So don't do that. Be safe. Before exam only solve all the mocks and all the case study mentioned in the student journal as well. Don't leave any gray areas here. जो अलग से एक्ट थे जो अपने लॉ पेपर 4 में नहीं थे, वो मैंने एक बार रीड किए थे बिफोर एग्जाम्स, लाइक इन द 1.5 day span. Carry on exam day, what I had carried was, first module, second paper 4 author book या फिर मॉड्यूल, वॉट एवर यू गाइज आर रेफरिंग, समरी बुक होगा, कुछ होगा, खुद से बनाए होगे नोट्स, कैरी दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड केस स्टडी डाइजेस्ट, फोर्थ केस लॉ, फिफ्थ डिक्शनरी.
कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछ लिए जिसका मीनिंग ही नहीं पता, और वो क्वेश्चन पूरे वो वर्ड के इर्द गिर्द ही है। तो आई हैड कैरीड अ डिक्शनरी, तो मेरे को इतना कुछ हेल्प नहीं था और ना ही इतना टाइम था कि डिक्शनरी खोल के रेफर करके उसको समझो, प्रोसेस करो। But safer side, carry one dictionary. It will help. Smartly utilize that 15 minutes in your favor. What I had done was, मेरे को जब क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने जस्ट ऊपर से देख लिया कि ओके ये PMLA एक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट है, ये एक्ट है, ये मिसमैनेजमेंट वाला है, ये IBC बोलता है, ये फेमा है, ये थोड़ा ये है, ये। तो मैंने ऊपर से फर्स्ट मैंने सब एक्ट्स देख लिए, सब केस स्टडीज़ के। देन आई सॉ वाज MCQ, कि किसके MCQ ज़्यादा इजी है, कि जिसमें मेरे को पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर इतना जेनरिक है कि हाँ क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देख के आई नो दिस इज़ द आंसर, लाइक वेरी वेरी श्योर। फर्स्ट आई फिल्टर आउट दैट कि ठीक है इसमें MCQ ईजी है, इसमें डिस्क्रिप्टिव ईजी है, ओके। देन थर्ड वाज, ये कहीं मैंने कनेक्ट किया है, इसको मेरे को कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ या फिर कंक्लूजन पढ़ के ऐसा मेरे को लग रहा है कि ओके ये कहीं मैंने पढ़ा है, या फिर ये सिमिलर नेम मैंने केस स्टडी में देखा था, या ऐसा कुछ मेरे को कुछ कनेक्ट हो रहा है, या फिर मेरे को रिकलेक्ट हो रहा है। देन आई मेड इट अ पॉइंट टू जस्ट पिक अप माई इंडेक्स एंड जस्ट ब्रश इट आउट कि ओके ये था, ये इसमें ये लिख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस भी देख लिए थे एक बार कि क्या पूछना चाह रहा है। ओके जेनरिक आंसर है कि मेरे को केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा, कि कोई नाम मेंशन करके ना व्हाट विल मिस्टर अमरजीत डू, तो अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे को पूरा केस स्टडी पढ़ना ही है। तो उसमें अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आई मेड इट अ पॉइंट कि वेरी स्मार्टली मैं 15 मिनट्स में ही कर लूँ कि ओके आई हैव टू डू दिस केस स्टडी, आई हैव टू लीव दिस केस स्टडी। तो वो 15 मिनट्स में मैंने एक पॉइंट बना लिया कि ठीक है क्वेश्चन 4 या फिर क्वेश्चन 3 केस स्टडी मेरे को नहीं करना है, लाइक दिस केस स्टडी कुछ भी आ जाए आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। हाउ आई हैड फिल्टर्ड आउट कि ये केस स्टडी मेरे को सॉल्व ही नहीं करना, मतलब उसके बेसिस क्या थे। फर्स्ट इट वाज कि ये जो एक्ट है, मेरे अभी 4-5 एक्ट्स है पेपर 6D में, तो इसमें से ये मेरा एक्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा तो भी मैं तुक्का मारूंगी तो भी मेरे मार्क्स जाएंगे, उससे बेटर दूसरे एक्ट्स पे फोकस करो। तो फर्स्ट आई फिल्टर्ड आउट कि ये जो वीक मेरा एक्ट है वो उसमें से क्वेश्चन है क्या। सेकेंड आई सीन कि बहुत ज़्यादा केस स्टडी रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्या, लाइक आई सेट कि अमरजीत वाला है, व्हाट विल अमरजीत डू, या फिर बहुत ज़्यादा केस लॉ पे रेफरेंस डाला और ये केस लॉ मैंने पढ़ा ही नहीं है या कुछ भी मेरे को पता ही नहीं इससे रिलेटेड, तो ऐसे मैंने फिल्टर आउट किया था। फिर MCQ बहुत ज़्यादा पेनल्टी पूछ लिया है, या फिर ये कहीं देखा ही नहीं है, ऐसा कुछ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सच एज जेनरिक और समथिंग लाइक दैट, तो और वो मोमेंट पे मेरे को क्लिक नहीं हुआ लाइक फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे। तो ऐसे बेसिस पे मैंने बना लिया कि ठीक है ये केस स्टडी मेरे को नहीं सॉल्व करनी, एंड रेस्ट ऑफ द केस स्टडी फिर कुछ भी है हाथ पैर मार के मेरे को सॉल्व करना है। एग्जाम ऑल्सो 4 hours 15 minutes मिलते तो हैं, बट इसमें भी स्पीड पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ऑन पर्पस वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव में जहाँ यू कैन राइट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम द डेफिनेशन टू द कंक्लूजन टू द रेफरेंसेज टू द केस लॉज टू द पेनल्टी, एवरीथिंग, बट मेक इट अ पॉइंट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट कंक्लूजन, दे कैरी मार्क्स। कोई भी लॉ पेपर 4 पेपर 6D दोनों में कंक्लूजन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा। सो मेक इट अ पॉइंट कि कंक्लूजन हो, अच्छे से केस लॉ का रेफरेंस दो, केस स्टडी जो है अगर प्रीवियसली अगर पढ़ा है और वही है, बट मेक इट अ पॉइंट कि उसमें कुछ ट्विस्ट ना किया हो एग्जाम में, बिकॉज देर आर हाईली चांसेस कि कुछ ट्विस्ट करके पूछे, तो वो ट्विस्ट फैक्टर को संभाल के रखना। एंड बाकी अगर जो पहले केस स्टडी डाइजेस्ट में से ही क्वेश्चन आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो पूरा जस्ट लिखते जाओ, ऊपर नहीं देखना, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, बस लिखते जाओ। और मैंने रोज़ एक केस स्टडी सॉल्व किया था, इसलिए मेरे को पेपर में इमीडिएटली द नेम्स वर नॉट सेम, नेम्स चेंज करके आए थे, बट मैंने रोज़ सॉल्व किया था ना, तो मेरे को पता था कि ये जो क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन ओनली इन द पेपर मैंने जो पढ़ा था वो मेरे को पता था कि ये केस स्टडी में से है, और मेरे को वो इमीडिएटली कनेक्ट हो गया और वो स्ट्राइक हो गया कि हाँ ये शायद ना 50 to 40 के लास्ट वाले मैंने उसमें पढ़ा था, बहुत रिसेंटली ही पढ़ा था मैंने, तो वो 10 केस स्टडीज़ में से ओनली हैड टू जस्ट फ्लिप द पेजेस कि ओके, एंड देन आई लिटरली फाउंड इट कि ओके दिस इज इट, लाइक लिटरली। सो दिस विल हेल्प keep control over the paper, like just do it every day, just give like 1 hour 1.5 hour for the paper, it's important. Don't treat it कि open book है तो okay एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले कर लिया हो गया, no. And don't forget this अगर इसमें ये पेपर में एग्जामिशन आ गया तो पूरा ग्रुप 2 निकल सकता है, बिकॉज एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्लीज़ ड्रॉप मी एन मेल और DM में, और डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स डाल दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड कमेंट. Till then, make it happen. Thank you.